Abari, Abari, Abari. Abari, 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 Abari. Abari, 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 Abari. Abari, 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 Abari. Oh, ami Abari, oh, Abari, manto Yeshua. Oh, ami Abari, oh, Abari, manto Yeshua. Oh, ami Abari, oh, Abari, manto Yeshua. Kayala piyala Yeshua dile. Kayala jaga Yeshua dile. Kayala piyala Yeshua dile. Kayala jaga Yeshua dile. Ami Abari ho, Abari manto Yeshua. Oh, ami Abari ho, Abari manto Yeshua. Oh, ami Abari ho, Abari manto Yeshua. दुनिया की माफी यीशु ने दी ले नवीन जीवन यीशु ने दी ले दुनिया की माफी यीशु ने दी ले नवीन जीवन यीशु ने दी ले अमी आभारी हो आभारी मानतो यीशुला हो अमी आभारी हो आभारी मानतो यीशुला हो अमी आभारी हो आभारी मानतो यीशुला हो अमी आभारी हो आभारी मानतो यीशुला I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy. All my fears are gone. I am no longer a slave to fear. I am a child of God.
bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। God is in charge. परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। He is in control. पूरे नियंत्रण में परमेश्वर है। Whatever happens, चाहे जो भी हो, God is at work. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। And we are called to reign with Him forever and ever. और हमें बुलाया गया है हमेशा हमेशा के लिए शासन करने के लिए। Every word that comes from God is encouraging. और हर शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो हमें प्रोत्साहन देता है। It is for our comfort. हमें सांत्वना देता है। It is to lift us. हमें उठाने के लिए होता है। It is to take us ahead. हमें आगे ले जाने के लिए होता है। It is for us to look towards Him. ताकि हम अपनी दृष्टि उसके ऊपर लगाए। It is for us to be strengthened. ताकि हम और मजबूत हो जाए। And then we'll see our victory every moment of our lives. और फिर हमारे जीवन के हर एक क्षण में हम विजय देखेंगे। We all face our ups and downs. हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। But God is in control. लेकिन परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। He has given us mandate. और उसने हमें एक कार्य दिया है। You are on an assignment. परमेश्वर ने आपके लिए एक कार्य सौंपा है। You are to do what He has called you to do. और जो बुलाहट उसने आपको दिया है आपको वो पूरा करना है। Today's message is the intent of the Lord. आज का शीर्षक है प्रभु का इरादा। Last time we heard about the secret of the Lord. पिछली बार हमने परमेश्वर का जो रहस्य है उसके बारे में देखा। How we have to move into the secret place. कैसे हमें उस गुप्त स्थान में जाना होता How है। the portal is opened. कैसे एक जगह पर स्वर्ग के लिए रास्ता खुलता है। How we have to search for the hidden things. कैसे हमें गुप्त चीजों के लिए खोज करनी है। So we need to understand the things of God. तो हमें परमेश्वर की चीजों को समझना है। Apostle Paul is saying, walk in the Spirit. जैसे पौलुस प्रेरित कहते हैं कि आत्मा में चलो। That means he is saying, do not be carnal minded. मतलब कि दुनिया की तरह हमें सोच नहीं रखनी We है। do not have to think how the world is thinking. जैसे दुनिया सोचता है वैसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। Man makes a lot of plans. मनुष्य बहुत सारी जो है जो योजना बनाता But the है। moment we just release everything to God and surrender, लेकिन जैसे हम सारी चीजों को परमेश्वर के हवाले सौंपेंगे, God's things come into our lives. वैसे वैसे परमेश्वर की चीजें हमारे जीवन में प्रवेश करती We हैं। need to come today to a point and say, God, now you move in. और इसलिए आज हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु अब आप आकर कार्य करो। Many times we allow God, but we give Him 50-50 place. बहुत बार हम परमेश्वर को मुंह से तो कहते हैं कि प्रभु आप करो, लेकिन हम बहुत सी बार जो है सिर्फ आधा अधिकार उसको देते हैं। Give Him your circumstances. आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके हवाले करो। Give Him your situations. जो भी जो है आपका जो जीवन में जो स्थान है जो हो रहा है वो सारी बातें उससे दे दो। See, kingdom life is very different. क्योंकि राज्य का जीवन बहुत ही अलग होता है। You know, Jesus Himself said, the Son of Man has come, but He has no pillow to lay His head. यीशु ने खुद कहा कि जो है मनुष्य का पुत्र धरती पर आया लेकिन उसे अपने सर रखने के लिए जगह नहीं है। Yet He was in authority. फिर भी यीशु के पास पूरा अधिकार था। Yet He moved in victory. उसके बावजूद वो विजय में चला। Yet the demons and the devils were subjected to Him. और दुष्ट आत्मा और शैतान भी जो है उनके पास भी प्रभु के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। Then why in the world are we facing such crisis? तो फिर भी हम अपने जीवन में इतने सारे मुश्किलात का सामना क्यों कर पाते हैं? In actuality, the world is in crisis. क्योंकि असल में पूरी दुनिया जो है जो संकट में है। And we are here to do what God has gave us things to do. और हमें यहाँ भेजा गया है ताकि जो उद्देश्य प्रभु ने रखा है हमारे लिए हमें उसे पूरा करना है। We will go to Genesis. हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में। We will see the intent of the Lord. यहाँ पर हम प्रभु का इरादा देखेंगे कि वो क्या है। What has God in His mind when He created man? जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी तब परमेश्वर के मन में मनुष्य के बारे में क्या था? See, when God created man in His own image and likeness, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके अपने स्वरूप में, He knew what functions has to be in that image. तो उसके जैसे
इसलिए बनाया क्योंकि वो जानता था कि वो मनुष्य को उसके स्वरूप में किस प्रकार से देखना चाहता था। Man has come out of God. और मनुष्य तो परमेश्वर के अंदर से निकला है, That means the likeness and the nature of God should be in His image. और इसलिए हमें परमेश्वर की तरह और परमेश्वर की छवि में जो है जीना होता है। Whenever you need to go back on track, we need to go to God's original intention. और जब भी हमें ऐसा सोच आता है कि हमें परमेश्वर के पास वापस जाना है, तो हमें परमेश्वर के आरंभिक इरादे में वापस जाना है। The devil lies to us in different ways. शैतान मनुष्य को अलग अलग झूठ कहता है, But we have to go back to the intention what God created us. और इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर का इरादा क्या था मनुष्य की रचना करने के लिए। Unless we go back and we understand, we will still fall short of the things that God has given us. और जब तक हम नहीं समझेंगे कि परमेश्वर का इरादा क्या है, तब तक हम उसके उद्देश्य को पूरी रीति से नहीं समझेंगे खुद के लिए। That's why when man sinned, when Adam sinned, he fell short of the glory of God. और इसलिए जब आदम ने जो है, जो पहला मनुष्य था, उसने जो पाप किया, तब वो परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया। Adam didn't have to have weaknesses. उसके पास कमजोरियां नहीं थी। He chose because God gave him free will. आदम के पास जो है स्व इच्छा दिया गया था। He had a choice of doing right and wrong. परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुम्हें चुनना है जो है सही चीजें करने के लिए। उसके पास वो चुनाव था, या तो वो सही करे या तो वो गलत करे। So he chose the other path. और आदम ने चुना गलत करने के He लिए। enjoyed freedom for some time. स्व इच्छा का उसने आनंद तो लिया। We do not know how much time. हमें नहीं पता कि पाप करने से पहले कितना समय अदन के वाटिका में उसने गुजारा था। But then came a point लेकिन फिर एक ऐसा समय था that he wanted to discover. कि वो खोज करना चाहता He था। wanted to be independent. वो जो है खुद की इच्छा से जीना चाहता था। And that's where the enemy comes in. और वैसा ही जो है शैतान आता है। He puts doubts. वो ऐसे ही मनुष्य के मन में वो शक डालता He है। sows seeds. He sows the weed. और जो है जो बुरे बीज वो हमारे जो मनों में वो डालता है। And that's what chokes us. और वो बुरे बीज के वजह से जो है हमारी सोच हड़बड़ा जाती है। So when God created man, male and तो female, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी पुरुष और स्त्री, see, man is a spirit. सबसे पहली बात तो मनुष्य आत्मा है। Male and female are body expressions. और पुरुष और स्त्री जो है सिर्फ शारीरिक जो शरीर है उसमें ही जो फर्क है। It is in physical terms. शारीरिक रीति से पुरुष और स्त्री होता है, But yet man and woman both are spirit beings. लेकिन असल में जो है हम देखते हैं ज्यादा जरूरी ये है कि मनुष्य आत्मा है, चाहे वो पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के शरीर में हो। So God blessed them. तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया उसने उसे आशीषित किया। We must highlight this in the Bible. God blessed them. Verse 28. और ये हमें जानना है, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय जो है 28वां वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित किया। Whenever God blesses, He has an instruction. He's saying something. और जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसके साथ साथ कुछ कहता भी है। That means when God gives a blessing, He's saying so that we can keep it. We have to sustain. और जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तब जो है वो क्या कह रहा है उसे सुनकर जो है उसे अपने पास रखना है वो करने के लिए। And there are the 5 things. और उसमें वो 5 चीजें हैं। You got 5 fingers. जैसे कि आपके एक हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, We need to, how we do accounting. जैसे हम हाथों में गिनती करते हैं। So He says, be fruitful, तो वो कहता है फलदायी बनो, multiply, बहुगुना हो जा, fill the earth. That means to increase. धरती को भर दो। Then He says to subdue it. फिर वो कहता है वश में कर लो। And then it says to have dominion. और फिर वो कहता है शासन करो। Unless we know these 5 things, these are the original intent and the purposes what God has for man. और ये 5 चीजें जो परमेश्वर ने कही आदम से, ये 5 चीजें जो है परमेश्वर का इरादा था
मनुष्य के हित के लिए। So we need to understand that it is God who has given it. और ये हमें समझना है कि ये सारी बातें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया। Verse 29. आगे देखेंगे Verse 29 28 it says, God blessed them. अभी अभी हमने जो पढ़ा था, लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित किया। In verse 29 he says, see, I have given you every herb yield seed. That means he has given dominion. Everything he has given under man. 29वें वचन में लिखा गया है, परमेश्वर कहता है कि हर बीज वाले जो छोटे छोटे जो बीज जो है उसके जो सारे जो चीजें जो पृथ्वी के ऊपर है, अलग अलग प्रकार के पेड़ का जो बीज जो है वो सारी चीजों के ऊपर, धरती की सारी चीजों के ऊपर मैंने तुम्हें शासन दिया है। Keep this in mind. He says, I have given. प्रभु कहता है कि धरती की सारी चीजें मैंने तुम्हें दी है। There are two things to be seen here. यहाँ पर दो बातें हमें ध्यान देना है। One is ownership. पहला है कि परमेश्वर मालिक है। One is rulership. एक है जो परमेश्वर ने हमें शासन करने का अधिकार The दिया। creator is the owner. Lord means owner. सृष्टिकर्ता जो हमारा प्रभु है वो मालिक है। The disciples called Jesus Lord. जैसे कि शिष्यों ने यीशु को प्रभु कह के पुकारा। That means owner. प्रभु का मतलब है हमारा मालिक। But man has been given the earth to rule. लेकिन धरती को मनुष्य के हाथों में सौंपा परमेश्वर ने, ताकि मनुष्य धरती की चीजों पर शासन कर सके। We don't have ownership rights. We have rulership rights on earth. इसीलिए धरती के हम जो मालिक नहीं है, लेकिन हम शासक है, जो अधिकार प्रभु ने मनुष्य को दिया। If we are given ownership rights, we would be here forever and ever and ever and not be going anywhere. क्योंकि अगर परमेश्वर ने जो है हमें इस धरती का मालिक बनाया होता तो हम हमेशा के लिए इस धरती पर ही होते, यहाँ इसे छोड़कर कहीं नहीं जाते, क्योंकि हम इसके मालिक है। But we have been given rulership. इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें धरती पे शासन करने का अधिकार दिया। Now when you have rulership, you must have these 5 things within it. और इस शासन करने के अधिकार को जो करने के लिए ये 5 चीजों का आशीष परमेश्वर ने मानव जाति को दिया। There must be fruitfulness. क्या थे वो? कि हमें फलदायी होना है, There must be multiplication. हमें बहुगुना होना है हर चीज। There must be the filling of the earth. पूरे धरती को भर देना है। That is called increase. उसे कहते हैं बढ़ोतरी। When there is subdue. और फिर कहा गया है कि वश में कर लो। And then it says dominion. और फिर लिखा गया है कि अधिकार को ले लो। What is ours? जो चीजें हमारी है उस पर। Many a times we think that it is only the things of the earth. बहुत बार हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ तो धरती के बारे में ही है, So that we can enjoy luxury life. ताकि हम जो है एक अच्छा जीवन धरती पे बिताए। We are called as kingdom people. सबसे जरूरी बात ये है कि हमें राज्य के लोग कहा जाता है। There are intentions that God has that we are not understanding. परमेश्वर के इरादे इतने हटके हैं कि मनुष्य उन्हें पूरी रीति से नहीं समझ पाता। Many are born, many die. बहुत सारे लोगों का जन्म होता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। But how many die completing the things of God what they have in their life? लेकिन जिनकी मृत्यु होती है उनमें से कितने लोग परमेश्वर के दिए गए इरादे को पूरा करते हैं अपने अपने जीवन में? Among all of them, many of them do not know who Jesus himself is. उनमें से सबसे पहले तो बहुत लोग यीशु के बारे में खुद नहीं जानते हैं कि यीशु कौन है। And a few who know him, they do not know how to follow him. और कुछ लोग जो यीशु के बारे में जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि यीशु का पीछा कैसे करते हैं। They had a mandate, but they do not know how to carry it forward. वो जानते हैं कि काम क्या है, लेकिन वो काम कैसे पूरा करना है ये नहीं जानते हैं। In the kingdom, it is serious business. और राज्य में चीजें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। And when Adam lost rulership rights is when he sinned. और जब आदम ने शासन करने का अधिकार खो दिया,
तब जो है उसने जो पाप किया था, God had appointed him as ruler, given him position. परमेश्वर ने आदम को चुना था और उसको वो स्थान दिया था शासक होने के लिए। This is why the enemy was very upset. ये देखकर जो है शत्रु बहुत गुस्सा हो गया। How can you just make man and give him rulership just like that? शैतान को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने सोचा कि जो है इस मनुष्य को परमेश्वर ने पूरा अधिकार कैसे दे दिया, And man is now enjoying it. और शैतान ने देखा कि मनुष्य शासन करने का पूरा अधिकार का मजा ले रहा है, He compared himself to the image of God. और उसने खुद की तुलना उस मनुष्य के साथ किया। He thought for himself, I've been thrown down, and here this image is enjoying the best of the best. और शैतान ने ऐसे सोचा कि मुझे तो जो है स्वर्ग से नीचे फेंका गया था, और अब ये मनुष्य जो है इसको परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया है और वो धरती पर सारी चीजों का आनंद ले रहा है। He came into the area of man's dominion. और इसलिए जो है वो मनुष्य के शासन करने के क्षेत्र में वो कदम रखता Because है, God, who's in owner, had given man to rule. क्योंकि परमेश्वर जो धरती का मालिक है उसने मनुष्य को अधिकार दिया शासन करने के लिए धरती पर। So the enemy thought, if I can't get to be owner, let me rob the rulership rights. और इसलिए शैतान ने सोचा कि अगर मैं इस धरती का मालिक नहीं बन सकता हूँ तो जो है मनुष्य से उसका ये शासन करने का अधिकार उससे मैं छीन लूंगा। So we need to understand that here the enemy is very crafty. तो यहाँ इससे हमें जो पता चलता है कि शैतान जो है बहुत ही कपटी है। So we need to understand in Abraham's time, अब इब्राहिम के टाइम पर भी हमें समझना है, God says, come out, leave your family, leave everybody, and you come out. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने घराने को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, अपने जहाँ आपने जन्म लिया है उस जमीन को छोड़ दो, वहां से बाहर निकलो। God had an intent, he had a purpose, he had a plan, he had a strategy. क्योंकि परमेश्वर के मन में जो है एक इरादा था, एक योजना थी, उद्देश्य था अब्राहम के जीवन के लिए। So he had everything in place for Abraham. और इसी प्रकार से जो है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इरादा मन में रखते हुए परमेश्वर ने सारी चीजों की तैयारी की अब्राहम के लिए, ताकि वो वहां से निकलकर आगे ये करे। But not in that place where he was staying, because he was too accustomed, he was too familiar with all these things. और जो भी इरादे परमेश्वर ने रखे थे अब्राहम के लिए, वो सारे इरादे जो है उस देश में पूरा नहीं हो सकता था जहां पर वो जन्मा था, और जो है जो वो पूर्वज के सारी चीजें कर रहा था। God wanted to teach him new things. परमेश्वर उसे नई चीजें सिखाना चाहता था। God wanted to teach him what faith is, परमेश्वर अब्राहम को सिखाना चाहता था कि विश्वास असल में क्या होता है, what it means to trust in Jehovah, क्या अर्थ है यहोवा परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखने का, what it means to depend on him. मतलब क्या है परमेश्वर पर पूरा विश्वास करने का। It's not having things in monetary or any other thing, but it is having faith in God. ये जरूरी नहीं है कि धरती की चीजें हमारे पास कितनी है, जरूरी ये है कि परमेश्वर हमारा विश्वास कितना है। It is man who sees in a logical way our possessions. सिर्फ जो है धरती के जो मनुष्य जो है, दुनिया के जो लोग सिर्फ वो सोचते हैं दुनिया के धन के बारे में, See, the world wants to turn us like them. और दुनिया के लोग हमें उनके जैसे देखना चाहते हैं। That's why walk in the spirit. इसलिए जो वचन में लिखा गया है कि आत्मा के अनुसार चलो। That's why the Bible is specifying you are seated in the heavenly places. The moment you sit with people down there, you'll become like them. You'll import things from their lifestyle. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान हो, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारा स्थान जो है ऊपर है स्वर्ग में, इसलिए हमारी दृष्टि जो है स्वर्गीय चीजों पर होनी चाहिए, ना कि धरती के चीजों पर या धरती के लोगों पर। इसलिए हमें जो धरती के तौर तरीकों के अनुसार जीने के बारे में नहीं सोचना है। How good it was for Adam. He had dominion over all the fish of the sea. आदम के बारे में अब सोचो कि कितना अच्छा था कि उसको जो है पूरा अधिकार था सारे मछलियों के ऊपर भी जो समुद्र में तैरते हैं, All the birds of the air. सारे पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं उनके ऊपर भी शासन
आदम के हाथ में था। All the trees were his. सारे पेड़ जो धरती पर थे उसका अधिकार भी आदम के हाथ में था। Every beast, everything that creeps on the earth, everything was under him. धरती के हर प्राणी के ऊपर भी आदम का अधिकार था। So God gave everything under Adam's subjection. तो अब सोचो कि ये सारी सृष्टि को आदम के वश में डाला गया था। God's intention for you and me is rulership. और परमेश्वर का इरादा आपके लिए और मेरे लिए जो है शासन करने का है। What do we understand by rulership? तो ये शासन करने का मतलब क्या है? It means actually to be stewards. Jesus has spoken many times about stewardship. इसका मतलब है कि एक प्रबंधक होना, यीशु ने भी जो है एक प्रबंधक होने के बारे में काफी सारी चीजें कही। That's why Paul says, I am a servant of him. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तो प्रभु का दास हूँ। In another way, he says, I am a bond slave. एक दूसरी जगह पर वो कहता है कि मैं तो एक बंधा हुआ गुलाम हूँ प्रभु का। Further on, he goes and says, I am a prisoner of Christ. आगे जाकर वो कहता है कि मैं प्रभु के लिए एक चौबंदी हो गया हूँ। Apostle Paul, he understood the intent of God for his own life. पौलुस ने ऐसा कैसे कहा? क्योंकि उसने समझा कि परमेश्वर का इरादा उसके जीवन के लिए खास क्या है। We will open to 1 Samuel 17. हम खोलेंगे 1 शामूएल 17 अध्याय। This is between David and Goliath. ये जो है दाऊद और गोलायत के बीच में। This is the scene. ये जो दृष्टि है यहाँ पर, It is Goliath who's standing before the armies of Israel in verse 8. हम देखते हैं यहाँ पर जो गोलियत जो है, जो एक बड़ा दानव जैसा था, वो अभी इज़राइल की सेना के सामने खड़ा था। He says, why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine, and you, the servants of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down to me. हम देखते हैं यहाँ पर ये जो दानव है गोलियत जिसका नाम है, वो इज़राइल को चुनौती देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर जो है युद्ध के लिए जो है कैसे आ गए? क्या आप जानते नहीं हो कि मैं एक फिलिस्ती हूँ और तुम तो शाऊल के दास हो? ठीक है, तुम में से एक मनुष्य को चुन लो ताकि वो मेरा सामना करे। Where did Goliath get such confidence? तो इतना आत्मविश्वास गोलियत के अंदर कहां से आया? Israel was serving God, Jehovah, Elohim, Adonai. जबकि इज़राइल जो है यहोवा परमेश्वर जो है का आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर के लोग थे। And he says in verse 10, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. और फिर जो है आगे 10वें वचन में यही गोलियत जो है इज़राइल को चुनौती दे रहा है कि मैं इज़राइल की सेना को चुनौती देता हूँ, आ जाओ तुम में से एक व्यक्ति और फिर हम युद्ध करेंगे एक दूसरे के साथ। So he is challenging Israel. तो हम देखते हैं ये गोलियत दानव इज़राइल को चुनौती दे रहा है जो परमेश्वर का है। Who is on the opposite side? तो सामने कौन है? Saul and all Israel. शाऊल राजा और पूरा इज़राइल। And what happened? तो क्या हुआ? When they heard this Philistine, they were dismayed. It says, the Bible says, they were greatly afraid. बाइबल में लिखा गया है कि जब इज़राइल की सेना ने गोलियत की चुनौती को सुना तो वो बहुत भयभीत हो गए। So what happened? In the story, David comes there. हम देखते हैं आगे कहानी में जो है दाऊद वहां पर आता है। Even though Saul was king, he lost rulership. There and there, when you are afraid, you lose rulership. हम देखते हैं यहाँ पर हालांकि इज़राइल का राजा शाऊल था,
लेकिन जो है उसने अपने अधिकार को खो दिया उसी समय जब उसने भय को अपने हृदय में आने दिया। Just because you have a crown doesn't mean you are king. और इसलिए अगर तुम्हारे सर पर मुकुट है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम राजा हो। The people around you will think you are king, but the opposite who's coming against you, they know you are afraid. शायद आमने सामने के लोग तुम्हारे मुकुट को देखकर ये समझे कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम राजा हो कि नहीं ये सिर्फ तुम्हारा सामने वाला जो तुम्हें चुनौती देता है वो ही जान सकेगा कि तुम कैसे राजा हो। Because a king is fearless. क्योंकि एक राजा जो है निडर होता है He has authority. और उसके पास पूरा अधिकार होता He है, has power. उसके पास वो शक्ति होती So you है। understood Saul had, he lost it within him. लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल राजा के अंदर जो है ये सारी बातें जो है उसने खो दी थी। He started off well as king. उसने जो है अपने राजा का शासन जो है अच्छी रीति से शुरुआत की थी, But here he is ending it badly. लेकिन यहाँ जो है गोलियत के सामने जो है ये जो है शाऊल राजा हड़बड़ा जाता है और सारा अपना आत्मविश्वास खो देता है। What happened? क्या हुआ वहाँ पर? He strayed away from God's word. क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया, He strayed away from the things of God. परमेश्वर की चीजों से उसने खुद को दूर किया। When you become overconfident, you stray away from God's word and you think you can do it on your own. That's the problem today with man. समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि मैं खुद के बल से चीजें कर सकता हूँ। जब हम ये सोचते हैं कि हम खुद से कर सकते हैं, समस्या वहीं पर शुरू होती है, गड़बड़ियां वहीं पर शुरू हो जाती है। So he understood, David understood something. लेकिन हम देखते हैं दाऊद जो वहां पर आता है उसने एक बात को बहुत अच्छी रीति से सीख लिया था। He was the boy chosen for that moment. परमेश्वर ने दाऊद को उस क्षण के लिए चुना था। People of God, beloved of God, you are chosen for a moment like this. वैसे ही परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने आपको चुना है आजकल के समय में जीने के लिए। God has put things inside of you that can make the enemy flee. और परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसी चीजें डाली है जिससे शैतान तुम्हारे सामने से भाग सकता है। You need to just speak and declare the things of और God. उसके लिए आपको अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को घोषणा करनी है You need to be fearless. और निडर होना है आपको। Those who are fearless have power. जो लोग जो है ऐसे निडर होते हैं वो ही सामर्थ्यशील होते हैं, And those who have fear have powerless. और जो भय को अपने अंदर जो है आपको आपके ऊपर कब्जा करने के लिए आप उनको अनुमति देते हैं, तब आप शक्तिहीन हो जाते हो। David was discouraged from going there. हालांकि दाऊद को लोगों ने रोका आगे जाने के His लिए। own brothers discouraged him. दाऊद के खुद के भाइयों ने उसको रोका वहां पर जाने से। But David knew the intent of God. He knew the purpose of God for them. It's now or never. लेकिन दाऊद जानता था कि ये समय है जहां पर मुझे ही अब कुछ करना ही होगा। You get opportunities. ऐसे ही आपको भी अवसर मिलेंगे जहां आप जानोगे कि आपको कुछ करना है। David said, "This is my opportunity for rulership." जैसे कि दाऊद ने समझा और उसने तय किया कि ये जो है मेरा क्षण है ताकि मैं शासन करने का पद हासिल करूं। I believe the moment he took on Goliath, the crown shifted. हम ये मानते हैं कि उसी समय जब दाऊद ने तय किया कि वो जाकर सामना करेगा गोलियत का प्रभु के नाम से, उसी समय जो है शाऊल का जो मुकुट था वो असल में दाऊद के ऊपर आया। Many run for the crown. Let the crown come after you. बहुत लोग मुकुट पाने के पीछे भागते हैं, मुकुट को आने दो आपके सर के ऊपर। Don't run after position. It will come. स्थान के लिए आप भागो नहीं, स्थान जो है आपके पास आएगा। Don't run after fame. और उसी रीति से जो है मशहूर होने के लिए आप नहीं देखो। So many were carnal in the Israel camp. उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इजराइल की सेना में जो है ये सारे इजराइल की सेना के लोग जो है बहुत ही भयभीत हुए थे। King Saul gave up responsibility. और शाऊल राजा ने अपनी जिम्मेदारी को त्यागा। And the servant of God, that is David, who became king, he took over that responsibility. और
दाऊद ने जो है वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं राजा होने का अभिषेक उसके ऊपर आया। We are called to take up the responsibility in the kingdom of Jesus. यीशु मसीह के राज्य का अधिकार अपने हाथ में लेने के लिए प्रभु ने हमें चुना। We have different types of Goliaths standing in our way. और हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार के गोलियत दानवर खड़े हैं। All this time we always praying for ourselves. It's okay. बहुत समय हो गया है, हमने खुद के लिए ही प्रार्थना किया है, ठीक था, हमने किया अभी तक। We need to pray for souls for the kingdom. हमें प्रार्थना करना है ताकि और ज्यादा लोगों का उद्धार हो जाए। There are territorial spirits. There are Goliaths in our areas that are trying to ruling for quite some time. अलग अलग क्षेत्रों में जो है हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं होती है जो है अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने के लिए देखते हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकना है। There are different Philistines that are staying there for some time. बहुत सारे ऐसे जो है फिलिस्ती जैसे दुष्ट आत्माएं जो है जो शासन कर रहे हैं, अभी बहुत समय हो गया वो ऐसे कर रहे हैं। And you are born for a thing like this. और परमेश्वर ने आपको चुना है बदलाव लाने के लिए। There are demonic powers that are stopping you. शैतानी शक्तियां शायद आपको रोक रही हो, There are curses that are released. या ऐसे श्राप जो आपके ऊपर डाला गया हो, There are hurdles that are put before your ministry. या फिर ऐसे जो बाधा जो आपकी सेवकाई में डाली गई हो, There are many distractions that is taking you away from the things of the spirit. या फिर शायद ऐसी चीजें जो आपके मन को भटकाती है परमेश्वर की चीजों से। Do not allow this to take you away. तो ऐसी चीजों को आपको जो है अनुमति नहीं देना है कि वो चीजें आपको प्रभु से दूर ले जाए। Nothing is going to happen to us. क्योंकि हमें कुछ नहीं होने वाला है, God has blessed us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया God है। has made us fruitful. परमेश्वर ने हमें फलदायी बनाया God है। will multiply. परमेश्वर हमें बहुगुना बनाया God है। will put an increase. और परमेश्वर वो बढ़ोतरी लेकर We आएगा। have to just understand cultivation. हमें सिर्फ समझना है कि हमें कौन सा कार्य करना है। What is our work in the kingdom? राज्य में हमारा काम क्या है? We need to pull up our socks and be waging war against the enemy and the principalities of darkness. हमें खुद को तैयार करना है ताकि हम शत्रु के अंधकार के राज्य का सामना करके विजय हासिल करें। What God gave Adam, Adam lost it all. हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने इरादा रखा था और आदम को वो शासन करने का अधिकार दिया था, आदम ने वो सब कुछ खो दिया शैतान के हाथों। He forgot how to rule. वो फिर भूल गया कि शासन कैसे करना है। When you go away from the instructions of God, you forget how to rule. क्योंकि जब आप वचन से दूर जाते हो, जो वचन कहता है उसको करने से चूकते हो और प्रभु से दूर हो जाते हो, तो आप शासन नहीं कर पाते। You know what? The commandments were given in the desert. 10 आज्ञाएं हम देखते हैं निर्जन प्रदेश में परमेश्वर ने दी थी। Why did God give? He could have given them in the promised land directly. परमेश्वर ने उनको जो है निर्जन प्रदेश में वो आदेश क्यों दिए? परमेश्वर चाहता तो जो है जो वाचा के देश में कदम रखने के बाद उनको आदेश देते कि आप उनको क्या क्या करना है। He gave them over there so that they could learn and practice. परमेश्वर ने इसलिए निर्जन प्रदेश में इज़राइल को वो जो सारे जो वाचा दिए ताकि वो उनको जो है अपने जीवन में लागू कर सके, उसकी आदत डाले वाचा के देश में जाने से पहले। So once they are accustomed to it, it would be easy for them to rule. क्योंकि पहले ही अगर हम कुछ चीजों की आदत को डालते हैं तो बाद में शासन करने के समय में आसान होता है। So we need to understand that God's intention is very clear. तो हमें समझना है कि परमेश्वर का इरादा तो बहुत स्पष्ट है हमारे लिए। We may be thinking of taking some baby steps, but we need to move in strides. That is what God is seeing. शायद हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे कदम लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आपके लिए बड़े बड़े कदम लेने के लिए स्थायी किया गया है। You know, when we look at a seed, we know that that same seed will turn into a tree. जब हम एक बीज को देखते हैं तो हम जानते हैं कि हर बीज आगे जाकर एक पेड़ होता है। But when God sees a seed, He sees a forest. लेकिन जब परमेश्वर एक बीज को देखते हैं तब वो एक पूरे जंगल को देखता है। When God has chosen you, He's seen that you will bring souls into His kingdom. जब परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया, उसने ये स्थायी किया है कि तुम्हारे द्वारा तुम
बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले आ सके। He has given you the strength to overcome the Goliaths. परमेश्वर ने आपके अंदर वो क्षमता डाली है ताकि आप हर गोलायत के ऊपर विजय हासिल कर सको। What is happening today in the church age? आज के कलीसिया के युग में क्या हो रहा है? The way God gave Adam rulership जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को शासन करने का अधिकार दिया in that garden, उस बगीचे में, Jesus is coming back. वैसे ही यीशु वापस आ रहे हैं। He's coming back. यीशु वापस आ The रहे good हैं। news is coming back. वो खुश खबर जो है वापस आ रहा है। And earlier when he came, 2000 years ago, 2000 साल पहले जब वो आए थे, he taught the disciples. तब यीशु ने शिष्यों को सिखाया, He created history उन्होंने इतिहास बनाया, that demonic powers have to run away. जिसकी वजह से जो है दुष्ट शक्तियों को भागना था। When his time was getting over, और जब उसका समय खत्म हो रहा था, he told his disciples, तब यीशु ने शिष्यों को कहा I give you the keys. कि मैं तुम्हें चाबियां देता I हूँ, give you the keys to the kingdom. मैं तुम्हें चाबियां देता हूँ स्वर्ग के राज्य It में। is delegated authority. ये जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, You know, Jesus has given us authority for rulership. यीशु ने हमें वो चाबियां दी है जिससे हम शासन फिर से कर सकते। That means what Adam has lost, Jesus has given us more power. इसका मतलब जो अधिकार आदम ने खो दिया था उसे कई गुना ज्यादा अधिकार अब यीशु ने हमें दिया है फिर से। Now he's giving us power over things that are unseen. अब हमें ऐसा सामर्थ दिया गया है ऐसे चीजों के ऊपर जो अदृश्य है। I'll show you the purpose of the church, God's intent. अब हम देखेंगे परमेश्वर का इरादा या उद्देश्य कलीसिया के लिए क्या है। How when Jesus came, he gave us the keys of the kingdom. कि जब यीशु आए तो कैसे उन्होंने राज्य की चाबियां हमें दी। Ephesians 3. एफिसियों की पुस्तक देखेंगे 3 अध्याय Verse 9. 9 वचन। It says, and to make all see what the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। Man is not a mistake. मनुष्य जो है ये एक गलती नहीं है। The church is not a mistake. कलीसिया एक गलती नहीं है। God created man. परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। God put church as an institution of rulership on earth. परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की है ताकि वो धरती पर शासन करे। It is God's divine purpose and plan. और ये करने के लिए परमेश्वर का इरादा था, परमेश्वर का योजना था। Our present world does not reflect the kingdom order God originally intended it to be. और ये जो दुनिया हम देखते हैं और जिसमें हम जीते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर ने इरादा नहीं रखा था कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए। See, God had infinite wisdom. परमेश्वर के पास असीमित जो ज्ञान और बुद्धि है। And He wants the church to understand the same. और इस बात को वो चाहता है कि कलीसिया समझे। It's not that we just receive Jesus, we have the Holy Spirit and sit tight. ऐसा नहीं है कि बस हमने यीशु को स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया तो बस अब हम आराम से रह सकते हैं। The mystery of God is unknowable until God has revealed it. लिखा गया है कि परमेश्वर के रहस्य जो है रहस्यों से अनजान थे जब तक कि परमेश्वर ने उन चीजों को प्रकट न किया हो। It says to make all see. ताकि सब लोग सारी चीजें देख सके। What is the meaning of the word see? ये देखने का मतलब क्या है? It means to give light. इसका मतलब है कि प्रकाश उस चीज पर आए। It means to shine. इसका मतलब है कि वो चीजें चमके, प्रकाशमान It हो। means to get an understanding. इसका मतलब कि उन चीजों की समझ हमें आने लगे। Understanding of what? किस चीज का समझ? Understanding the fellowship of the mystery. वो रहस्य का
संगति क्या है उसकी समझ। What is the mystery? Hallelujah. ये रहस्य क्या है? The mystery himself is the personality, Jesus Christ, the second person of the Trinity. ये रहस्य है यीशु मसीह जो प्रभु था, जो त्रिएक परमेश्वर आया था मनुष्य बनकर। Arise and shine, for the light has come. इसलिए उठो और चमको, क्योंकि वो प्रकाश धरती पर आया। So the moment we received Jesus and the Spirit of God started living in us, we started beginning to और shine. इसीलिए जिस दिन से हमने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा, उसी दिन से हमारा जीवन चमकना शुरू किया। We heard about Jesus, but now we know Him, we understand Him, we can approach Him, we can get closer to Him. हम पहले जो है सिर्फ हमने यीशु के बारे में सुना था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने यीशु को जाना, वैसे वैसे हम परमेश्वर के और करीब जाने लगे, उसको और करीबी रीति से, गहरी रीति से उसे समझने लगे, जानने लगे, उसके हृदय को जानने लगे। So the fellowship of the mystery is very important. We have to see. और इसीलिए जो है हम देखते हैं यहाँ पर रहस्य की संगति जो है ये है कि हम चीजों को देखना शुरू करें, समझना शुरू करें। The fellowship of the mystery has to do with sight. और जो है हम देखते हैं यहाँ पर ये जो रहस्य का जो संगति है, इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि अब साफ हो गई है, अब चीजें हमें समझ में आने लगी। Fellowship means association. जैसे कि संगति का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ अब हम मिल रहे हैं। It's communion with the mystery. मतलब कि अब जो है हम उस रहस्य के साथ जो संपर्क हमारा जुड़ता जा रहा है, Because God revealed Jesus to us. क्योंकि यीशु का प्रकटीकरण हमको मिला है। We have now participation in the fellowship. और इसलिए इस संगति में अब हमारा भी भाग है। That means we are no more spectators. इसका मतलब अब हम सिर्फ बाहर खड़े रहकर दूसरों को नहीं देखना है। See, you know, King Saul, he lost rulership rights, and all the people also, their morale was gone. जैसे कि हमने देखा उस कहानी में कि शाऊल राजा जब उसने भय की वजह से अपने शासन करने के अधिकार को खो दिया, उसी समय उसकी पूरी सेना ने भी जो है भयभीत होने की वजह से जो है सारा आत्मविश्वास खो दिया। But church is the body of Christ. लेकिन कलीसिया तो यीशु मसीह का देह है। That means the body has a head, and the head is Jesus himself. और वो देह का एक सिर होता है और वो सिर यीशु मसीह खुद है। We need to understand this. और ये बात हमें समझना है कि कलीसिया जो है शरीर है और शरीर का सिर यीशु मसीह। We are beginning to see the fellowship of the mystery, which from the beginning of ages had been hidden in God. और ये जो है ये Hallelujah. रहस्य अब हमें समझ में आने लगा है कि वो रहस्य असल में यीशु के बारे में था जो पहले उनके लिए गुप्त था, लेकिन अब हमारे लिए उसका खुलासा किया गया है कि यीशु हमारा उद्धारकर्ता होने के नाते कौन है। See, the Spirit of God searches the deep things of God. जैसे वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की चीजों को हमारे अंदर खोजता है। Who from the beginning of ages has been hidden in God, who created all things through Christ Jesus. सारी चीजों जो उसके अंदर गुप्त थी यीशु मसीह के द्वारा। Now you see how the church comes into this. अब हम देखते हैं यहाँ पर कलीसिया कैसे जुड़ी हुई है। It says in verse 10, 10वें वचन में लिखा गया है, to the intent. That means for a purpose. इस इरादे से मतलब एक उद्देश्य को लेकर के, That now the manifold wisdom of God might be known by the church. To who? The principalities and powers in heavenly places. लिखा गया है Oh ताकि my अब God. कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। So Jesus, he died on the cross, he got the victory, and now he's saying, oh, it is finished. Now you look what the church will do to you. यानी कि यीशु मसीह Telling the ने devil. क्रूस पर जाने की वजह से जो भी विजयी चीजें हासिल की है वो सारी चीजें क्योंकि उसने जो है कलीसिया के हाथों में सौंपा है, विश्वासियों को दे दिया है, इसलिए अब यीशु जो है शैतान को कह रहा है कि जो भी अधिकार मैंने अब विश्वासियों को दिया है, कलीसिया को दिया है, अब देखो
कि कलीसिया क्या क्या करता है। When Jesus is saying, I've delegated authority, that means saying, I know how my followers are going to handle the enemy. यानी कि जब यीशु कहते हैं कि मैंने जो है अधिकार की चाबियां तुम्हें दी है, मतलब कि यीशु शैतान को कह रहा है कि देखो अब मुझ पर जो विश्वास करते हैं वो कैसे तुझे देख लेते हैं। See, the Spirit of God is the governor. अब देखो परमेश्वर की आत्मा जो है वो तो राज्यपाल है He is looking at everything. और उसकी दृष्टि सारी चीजों पर है। And you know what? With the authority and the power that we have been given, और जो अधिकार और सामर्थ हमें दिया गया है, no harm would come to us. उसके वजह से हमारे ऊपर कोई हानि नहीं आ सकता। Don't look at the physical. आपको जो है शारीरिक चीजों पर, प्राकृतिक चीजों पर ध्यान नहीं देना Look है। at the spiritual. आपको आत्मिक चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। Many a times we are focuses on the seen things than the unseen. लेकिन बहुत बार हम अपनी दृष्टि को शारीरिक चीजों पर और प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा रखते हैं, अदृश्य चीजों पर जो आत्मिक चीजें हैं उन पे ऊपर हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। That's why the things were hidden in God. Hidden in God. The moment you come in the secret place, the moment you start getting the secret things of God, the hidden things of God will be revealed. इसलिए लिखा गया है कि सारी चीजें जो पहले गुप्त थी, तुम नहीं जानते थे इन चीजों के बारे में, लेकिन अब यीशु मसीह की वजह से तुम्हें जो है, जब आप उस गुप्त स्थान पर जाते हो, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, उसके शरण स्थान में जाते हो, तो सारी गुप्त बातों का खुलासा आपको हो जाता है, जिसकी वजह से चीजों की समझ तुम्हें आती है। See, Solomon was known for his wisdom. सुलेमान राजा को उसके बुद्धि की वजह से जो है जाना गया है। One person एक व्यक्ति was known for the wisdom. जो अपने जो बुद्धि के लिए मशहूर है। And if you see, the church should be known by the manifold wisdom of God, might be known by the church. हम देखते हैं इतिहास में जो है, ऐतिहासिक रीति से सुलेमान राजा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वचन ये भी कहता है कि अब जो है कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा बुद्धि की आत्मा को पाया है। Not to the people around you and me. हमारे चारों ओर दुनिया के लोगों के पास ये नहीं You है। know, we try to show off and try to show our wisdom and how great we are only to the people around us. हम जो है दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, ये हम जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको ही दिखाने की कोशिश That करते is हैं। not what Apostle Paul is saying. लेकिन पौलुस इस प्रकार से करने के लिए नहीं कह रहा He है। says the manifold wisdom of God is to be known by the church to the principalities and power in heavenly places. वो कहता है कि परमेश्वर Oh, के द्वारा hallelujah. जो बुद्धि हमने पाई है, ये इसलिए है ताकि ये बुद्धि दिखे, और ये जो है जो आत्मिक क्षेत्र में जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको दिखाने के लिए कि देखो यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने क्या दिया है। So when the devil looks, he says, oh, the wise church, wise church, wise church. कलीसिया को देखता है, तब जो है अलग अलग जगह पर जो है शैतान देखता है कि ये तो यीशु मसीह का बुद्धिमान कलीसिया है। हर जगह पर जो है यीशु मसीह का बुद्धिमान कलीसिया दिखाई देता है उसको। You know, the devil wants to make a fool of us. This is the reason. Because the manifold wisdom of God was expressed through the church. और हम देखते हैं शैतान जो है कलीसिया को और जो है लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है, लेकिन कलीसिया को यह जानना है कि परमेश्वर की बुद्धि उनको दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, जिसकी वजह से वो शैतानी ताकतों पर विजय हासिल कर सकते हैं। We know about the knowledge of God. हमारे पास तो परमेश्वर का ज्ञान है, We know about the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि के बारे में We जानते know हैं, about the authority of God. परमेश्वर का दिया गया अधिकार हमें पता We know है, about the favor of God. परमेश्वर की कृपा हमें पता है, We know the things of God. परमेश्वर की चीजों के बारे में ज्ञान And है। here the church is chosen. और यहाँ लिखा गया है कि कलीसिया को चुना गया That है, the manifold wisdom of God, that is the totalness of the wisdom of God, would be declared through the church to the principalities. ताकि परमेश्वर की बुद्धि कलीसिया के द्वारा। See, Paul is going ahead and showing a lot of things through Ephesians 3. हम देखते हैं एफिसियों 3 अध्याय में पौलुस ऐसे बहुत सारे रहस्यों का प्रकटीकरण दे रहा है। He goes more further and says, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him.
और आगे जो है वो लिखा गया है कि हमारे Hallelujah. अंदर वो धैर्यता है और वो आत्मविश्वास है, विश्वास के द्वारा जो हम यीशु पे रखते हैं। Not bold to fight some man. धैर्यता दूसरे मनुष्यों के साथ लड़ने के लिए नहीं, Principalities and powers and rulers of darkness. लेकिन दुष्ट आत्माओं के विरोध में, शैतान और उसके अंधकार के राज्य के विरोध में लड़ने के लिए। Therefore he says, do not lose heart और इसलिए लिखा गया है वचन में कि आपको हार नहीं मानना at है, my tribulations for you. क्योंकि जो है मेरी योजना तुम्हारे साथ है, तो संकटों पर ध्यान मत दो। I know how to handle all these things. मैं जानता हूँ कि इन चीजों को कैसे संभालना There है। are so many challenges, so many issues, so many problems, but I know how to handle because I have Christ in me. The manifold wisdom of God is operating through me right now. आपको ये जान लेना है कि चाहे संकट जो भी हो, चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे मुश्किलात कितना भी आया हो, उसके बावजूद आपको ये जान लेना है कि आप कौन हो। यीशु मसीह में जो है आपको वो सारे सामर्थ्य जो है शक्ति दिया गया है जिससे आप विजय हासिल कर सकते हो यीशु मसीह के द्वारा। And that's why he says, I bow my knees to my Father who is in heaven. और इसलिए वो कहता है मैं अपने घुटनों को टिकाता हूँ मेरे पिता के सामने जो स्वर्ग में है। So we need to understand और ये हमें समझना है इन बातों को। anything that God has given us, we will always give him glory. और जो भी चीजें परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए उसे महिमा देना जरूरी है। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर तो बहुत ही भला है हमारे प्रति, We are in the right family. और हम अब सही परिवार में डाले गए हैं। Those who are in Christ, we are family. जो भी यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो अब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो गए। You know, many people think if they are alone in this earthly, no one is there with them. बहुत लोग सोचते हैं जो धरती पर है वो अगर सोचते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में कोई नहीं है, तो ऐसे अगर कोई सोचता है, Some people think they got very big family. उसी प्रकार से जैसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं। This is the earthly understanding. तो चाहे आपकी सोच जो भी हो, ये सारे रिश्ते और समझ दुनिया की है। The physical family lasts for only some time. ये धरती के रिश्ते थोड़े सालों के लिए ही है, Apostle Paul is speaking about the spiritual family. लेकिन पौलुस आत्मिक परिवार के बारे में हमें बता रहे हैं, Whom God has named us in Christ Jesus. जिस परिवार में हमारा नाम प्रभु ने चुना है जोड़ने के लिए। So we need to understand 1 Corinthians 2:16. खोलेंगे 1 कुरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन। Whatever we need to understand, we need to get it from the secret place. जो भी हमें समझना है वो हमें गुप्त स्थान पे ही समझ में आएगा, It's all in the word of God. क्योंकि सारी बातें परमेश्वर के वचन में है। It's not in man saying. ये मनुष्य के शब्दों में नहीं है It's not in man's understanding. या मनुष्य की समझ से आपको वो उसका जो अर्थ कभी समझ में नहीं आएगा, This is revealed by the Spirit of God. क्योंकि ये प्रभु की आत्मा से ही हम समझ For पाते who has known the mind of God? क्योंकि परमेश्वर के मन को किसने जाना That है he may instruct him. कि वो प्रभु को निर्देशन दे। Many a time we instruct God. बहुत बार हम प्रभु को निर्देशन देते हैं, We tell him what to do. हम प्रभु को कहते हैं कि हमारे लिए क्या करना We है। only ask him and we only tell him, Lord, I need to do this way and do that way. हम ही उनसे प्रार्थना करते हैं चीजों के लिए और हम ही उनको बताते हैं कि किस प्रकार से उत्तर देना है। But we have the mind of Christ. लेकिन लिखा गया है कि हमें मसीह का मन दिया गया है। We have the things of God in our lives. परमेश्वर की चीजों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला है। When you say mind, it speaks of thought. यीशु मसीह का मन मतलब कि सोच, यीशु मसीह That जैसा। means you are thinking like Christ. मतलब आप यीशु की तरह अब सोच रहे हो। And God, Jesus, whenever he was here, he spoke about what his Father did. He has come here to do his Father's business. He has come here to do the will of the Father. और उसी प्रकार से हमें भी करना है जैसे यीशु ने किया। जब यीशु धरती पर थे तब यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ मेरे पिता की इच्छा को
पूरा करने के लिए जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वो ही सारी चीजें मैं भी करता हूँ यहाँ। You start looking and moving with people and say, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. और इसलिए जब भी आप एक दूसरे से मिलो तो आप एक दूसरे को कहो कि मेरा मन यीशु मसीह की तरह है, मेरा मन यीशु मसीह की तरह है अब। You need to confess it. और ये आपको मुंह से बोलना है, You need to believe it. उस पर आपको विश्वास भी करना है। Then that's how you will conquer. ऐसे ही आप विजयी हो सकते हैं। That's how the other thoughts will go away. ऐसा कहने से दूसरे सारे नकारात्मक सोच अपने आप दूर हो That's जाएंगे। why I'm saying we are not alone. इसलिए मैं हम कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, The church, the body of Christ is our family. क्योंकि पूरी कलीसिया मिलकर एक परिवार है। The physical family is good. शारीरिक धरती का जो परिवार है, एक जो व्यक्तिगत परिवार, वो अच्छे हैं। But the church family is given more because it will be forever, eternity with Him. लेकिन कलीसिया का परिवार जो है ये हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, इसलिए आत्मिक परिवार यानी कलीसिया के परिवार के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा निवेश करो। You are put into the family of God for a purpose. आपको परमेश्वर के परिवार में एक उद्देश्य के कारण से डाला गया है। Because you are in the family of God, your names are written in the Lamb's book of life. और क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार में डाले गए हो, इसीलिए आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा चुका है। That's why we need not only to read the word, but we need to revise, we need to meditate on God's word. और इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो सिर्फ शब्दों को मत पढ़ो, लेकिन बाइबल को पढ़ते समय जो है उसके ऊपर जो मनन करो कि वो क्या कह रहा है। You know, few days back, a good friend just expired, man of God. कुछ दिनों पहले एक प्रभु के दास की मृत्यु हुई थी And we got connected. और जो है हम कुछ ही समय पहले उनसे जुड़े हुए थे। I didn't know him much in the physical in that sense. हालांकि प्राकृतिक रीति से हम उसको व्यक्तिगत रीति से इतना करीबी रीति से नहीं जान पाए। That's why I'm trying to say this. But when I got to know him, it was a spiritual connection. लेकिन जो है आत्मिक रीति से एक जोड़ हुआ था उनके साथ, That when he left earth, it really grieved. जिसकी वजह से जब उसकी मृत्यु हुई थी तो हमें बहुत दुख हुआ था। It's not because you knew him for years or something like that. ये दुख इसलिए नहीं था क्योंकि हम उनको सालों से जानते थे, इसलिए नहीं था, But it was a spiritual connection. He was a man of God. He was a brother in Christ. लेकिन इसलिए वो दुख हो रहा था क्योंकि आत्मिक जोड़ हो गया था उस व्यक्ति के साथ, प्रभु के दास के साथ, जिसकी वजह से जो है वो दुख लगने लगा कि वो जोड़ आया था और अब वो रिश्ता नहीं रहा। But we are always connected by the Spirit. लेकिन ये भी सच है कि आत्मिक रीति से उस प्रकार से हम जुड़े हुए रहेंगे आत्मिक रीति से, क्योंकि अनंत काल के लिए आत्मिक परिवार होता है। Because he is with the Lord. क्योंकि हम जानते हैं कि वो प्रभु के पास ही गया है And someday we will all go. और एक दिन हम भी वहीं पर जाने वाले In the हैं। same way, we are the family of God here on earth right now. उसी प्रकार से जैसे हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने वाले हैं, उसी वही परिवार अब इस समय इस धरती पर है। हम सब We need to relate properly with each other. और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिश्ते को यहाँ पर भी निभाना है। We need to put everything in perception for the glory of God. और सारी चीजों की दृष्टि परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही डालनी है। See, God, what He has purposed, He will do. जो भी परमेश्वर ने इरादा रखा है, उद्देश्य रखा है, वो तो वो करेगा जरूर। You know, that's where stewardship comes in here. और इसलिए जो है हम देखते हैं यहाँ पर प्रबंधक का पद सामने आता है। Either we be a good steward or an evil steward. या तो हम अच्छे प्रबंधक होंगे या बुरे प्रबंधक A होंगे। good steward will fulfill the things what God has. एक अच्छा प्रबंधक वो सारी चीजों को पूरा करेगा जो काम परमेश्वर ने दिया है उसे। An evil steward is a self steward. और एक जो बुरा प्रबंधक वो होता है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। See, Jesus came not for himself, he came for us. जैसे हम जानते हैं कि यीशु धरती पर आए थे खुद के लिए नहीं, हमारे लिए वो आए थे। That's why he took the form of a
servant. और इसीलिए उसने एक दास का रूप लिया, And that's why he is today the wisdom of God. और इसलिए आज वो परमेश्वर की बुद्धि है। Because he is the wisdom of God, we have the manifold wisdom of God, that is the church. और इसलिए कि वो परमेश्वर की बुद्धि है, इसीलिए वो बहुतायक बुद्धि जो यीशु मसीह के द्वारा है, वो है कलीसिया। Revelations 5:10. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10वां वचन। He has made us kings and priests to our God. उसने हमें याजक बनाया है और राजा बनाया है हमारे परमेश्वर के। You and me are kings and priests to God. Who has made us? Christ Jesus. यीशु मसीह ने आपको और हमें राजा और याजक बनाया है परमेश्वर के। Praise God, we are kings and priests. तो प्रभु को धन्यवाद कि आज हम राजा और याजक है। Why? Because the church has to tell it to the principalities and the powers. क्यों हमें चुना है राजा और याजक जो बनने के लिए? क्योंकि शत्रु को या अंधकार के राज्य का सामना करके विजय हासिल करना है, इसलिए। Wherever you are staying, you have dominion. और इसलिए आप जहां पर भी निवास कर रहे हो, उस जगह के ऊपर शासन करने का अधिकार आपको दिया गया। Over evil spirits, over wicked powers, you have dominion. आपको शासन करने का अधिकार दिया गया है हर दुष्ट आत्मा पर, हर अंधकार की शक्ति के ऊपर। Speak to a domain. और इसलिए आप अपने क्षेत्र में मुंह से अपने विजय को घोषणा करो। Declare the word of God into the domain. परमेश्वर के वचन को आपके मुख से जो है आपको घोषणा करना है अपने अपने क्षेत्र में। Let the territorial spirits know that the manifold wisdom of God operates to each one of us. ताकि जो है आपके क्षेत्र के सारे दुष्ट आत्मा जो है वो सारे जान ले कि परमेश्वर की आत्मा जो है उसकी बुद्धि हमारे द्वारा जो है चीजों को प्रकट करती है। So once we are made kings and priests, we shall reign on earth. और जब हमें राजा और याजक बनाया गया है, तब से हम धरती पर शासन कर सकते हैं। When we say kings and priests, not just titles, और- it is the function. राजा और याजक ये सिर्फ जो है एक जो शीर्षक नहीं है, लेकिन जो है ये जो पद के साथ साथ उसका काम करना भी जरूरी है। So what is our function? तो ये काम क्या है जो हमें करना है? Go ye forth and Because- preach the good news. लिखा गया है कि जाओ और सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटो। Teach them, make disciples, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. उनको सिखाओ, उनको जो है बपतिस्मा दो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको ऐसा करना है। Go from city to city, village to village and preach the good news. हर गांव जाकर शहर शहर जाकर आपको सुसमाचार बांटना है लोगों से। Declare to the powers and the principalities that the manifold wisdom of God is operating right now through the church. और आप जो है हर जगह पर जाकर ये घोषणा कर सकते हो कि कलीसिया के द्वारा आपको अधिकार दिया गया है हर क्षेत्र के ऊपर विजय हासिल करने के लिए। David knew God, his Jehovah. उसी प्रकार से जैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर को जाना, He knew how to handle the situation against Goliath. वो जानता था कि गोलियत का सामना करने का जो परिस्थिति था उसको कैसे संभालना। You know, many a times we look at David and Goliath as just a personal victory, or a victory over my life, victory over my, very short-sighted. बहुत बार जब हम गोलियत और दाऊद की ये कहानी को पढ़ते हैं तो बहुत लोग सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि मेरा युद्ध है और मेरा जो विजय है बस इतना ही है। David never fought for himself, he fought for the people of Israel. इस कहानी को पढ़ते समय ये ध्यान देखना है कि दाऊद खुद के लिए वो युद्ध लड़ने आगे नहीं गया था, इज़राइल की ओर से लड़ने के लिए वो आगे जो बढ़ा था। It's how much you understand the scriptures, that much you will get dominion. और जितना वचन को आप समझने लगोगे उसी प्रकार से आप शासन का पूरा आनंद ले पाओगे। If you go and stand in favor of God's people, God will reward you. अगर आप पद में आप लोगों की कृपा का आनंद लेते हो प्रभु के द्वारा जो है तो प्रभु आपको उसका इनाम भी देगा। You know, the apostles, they faced trials and they faced testing, they faced persecution and all sorts of things, but they went through it. प्रेरितों ने और शुरुआती जो
मसीही लोग हैं खासकर, उन्होंने बहुत सारे सताव को झेला है, बहुत सारे संकट का सामना किया यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से, लेकिन फिर उनको उसका इनाम भी मिला। Today is our opportunity. आज हमें भी मौका दिया गया। David has his opportunity. उसी प्रकार से जैसे दाऊद को अवसर मिला था, David got victory in the opportunity he took. और वो अवसर में उसने अपने विजय को हासिल कर He लिया, had God's backing. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। We have the backing of our Lord Jesus Christ. आज यीशु मसीह भी हमारे साथ है, I can proudly say that Jesus Christ is Lord. और इसलिए हम जो है पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। We do not have to be worried who thinks what. और इसलिए हमें इस बात के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहते हैं, Because we know there is one Lord and one God, one Father and one truth. क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही प्रभु है, एक ही उद्धार करता है, एक ही पिता है और एक ही सच्चाई है। We may be faced with all kinds of things when we say all these things. और जब हम ऐसी चीजों को कहते हैं तो शायद हमें कुछ चीजों का सामना करने पड़े, कोई बात नहीं। But we are not saying only to man, we are declaring it to principalities and powers that Jesus Christ is Lord. क्योंकि जब हम कहते हैं कि Hallelujah. यीशु मसीह प्रभु है, ये हम सिर्फ मनुष्यों के सामने नहीं कह रहे हैं, आत्मिक शक्तियों के सामने भी हम ये बात घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। We are telling the devil and his company, you will have to bend your knees. Jesus is Lord. Bend, bend and bend. और ऐसा कहने से हम शैतान को कहते हैं और दुष्ट आत्माओं को कहते हैं कि तुम्हें अपने घुटनों को झुकाना ही है यीशु मसीह के सामने। ये शैतान को यीशु मसीह के सामने झुकना ही पड़ता है। That's why when you pray over the sick, they have to go away. और इसीलिए जब आप जो बीमार है उनके ऊपर प्रार्थना करते हो तो वो बीमारी, वो जो समस्या है उसको जाना ही है जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना You करते are हो। praying over the sick, yes, but you are driving them away. शायद आप दुष्ट आत्मा पर जो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, यीशु मसीह के नाम से जब आप ऐसे करते हो तो विजय आपका है। So victory is mine today. तो आज विजय हमारा है You need to declare it. और ये आपको घोषणा करना है I have the mind of Christ. कि यीशु मसीह का मन मेरा है, I am following the pattern what God has laid for me. कि जो रास्ता परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस पर मैं चल रहा I हूँ, am walking in the strategy that He has put forth before me. और जो रणनीति परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है उसके अनुसार मैं कार्य करता I हूँ। have the mind of Christ. मेरा यीशु मसीह जैसा मन है। Let no carnal thoughts rob us of what we are to God. और इसलिए दुनिया की कोई भी सोच हमारे मन के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर की सोच रखनी है। I believe that every follower, every one of you watching this, if you are in Christ Jesus, you are victorious, you are winning. और इसीलिए हम आपको पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि आप जो देख रहे हो, आप जो यीशु मसीह को स्वीकारे हो, आप विजयी मत चल रहे हो, पूरा विजय आपका है। Because we have to declare it and show principalities and powers. और ये बात आपको विश्वास से घोषणा करनी है ताकि आत्मिक शक्तियां भी ये सुन ले और समझ ले। The problem is that man is trying to show man. समस्या ये है कि एक मनुष्य दूसरे जो मनुष्य को दिखाना चाहता We है। don't have to give proofs to man. हमें जो है ये सारे सबूत सामने वाले जो मनुष्य को नहीं दे रहे। These are supernatural power, supernatural thing. Declare to the supernatural. और इसीलिए कि ये सारी बातें अलौकिक है, इसलिए अलौकिक रीति से जो है आत्मिक क्षेत्रों को ये चीजें घोषणा करनी है। You are chosen. आपको चुना गया है इन अलौकिक चीजों के लिए। As we bow our heads जैसे कि हम अपने सिरों को झुकाएंगे and we say, Father, और हम कहेंगे, पिता, you be given all glory and be honor and power, Lord. सारी महिमा, आदर, स्तुति आपको मिले। Father, we just surrender our lives to you. जैसे प्रभु हम अपने जीवन को पूरी रीति से आपके हवाले करते We हैं। thank you for your good intentions for man. आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद जो आपने मानव जाति के लिए किए हैं। We thank you, Lord, even after man lost it, you sent your only begotten Son so that we can be restored. और धन्यवाद पिता कि मनुष्य ने जो अपना अधिकार खो दिया था
आपकी दया से आपने वही अधिकार और ज्यादा अधिकार यीशु मसीह के द्वारा फिर से मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। We thank you that because of Jesus there is recovery, there is refreshing. इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह में हमें जो है वो ताजगी मिलता है, वो नयापन हमें मिलता है। We thank you that because of Jesus there is restoration. धन्यवाद कि यीशु मसीह की वजह से हम पुनर्स्थापना हो पाते हैं। Thank you, Lord, that because of Jesus there is reviving. धन्यवाद कि यीशु मसीह की वजह से जो है एक नयापन, एक ताजगी हमारे जीवन में उमड़ने लगता है। Father, and as we look at your word, और पिता जैसे हम आपके वचन को देखेंगे, thank you, Lord, for rulership, Lord. धन्यवाद शासन करने का जो अधिकार हमें आपने दिया है। Help us, Lord, to understand things, Lord. हमारी जो मदद करो परमेश्वर, ताकि ये सारी चीजें हमें समझ में आए। Speak to us, Lord. आप हमसे बातें करो पिता। Open our eyes, Lord. हमारी आत्मिक आंखों को खोलो पिता। Open our ears, Lord. हमारे आत्मिक कानों को खोलो May प्रभु। the spirit of boldness rest upon us. और ये धैर्यता की आत्मा हमारे ऊपर आ जाए। I rebuke every fear, हर डर को हम डांटते हैं इस समय। every evil power afflicting you, oppressing you. I rebuke you now in the name of Jesus. हर वो दुष्ट शक्ति जो आपको सता रही है इस समय किसी भी प्रकार से, हम डांटते हैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से। You have no rights over our lives in the name of Jesus. तुम्हें हम सबके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। Every pain and sickness in your bodies, I command them to leave now in the name of Jesus. और इसलिए हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी जो हमारे शरीरों में है वो निकल जाए इस समय यीशु मसीह के You are नाम से। commanded to leave in the name of Jesus. हम तुमसे बात करते हैं, ये सारी चीजें निकल जाएं शरीरों में से यीशु मसीह के नाम से। I speak into the environment today. और इस वातावरण में हम चीजों को घोषणा करते I हैं। speak the blessings of God हम परमेश्वर की आशीषें घोषणा करते हैं into your life, into your families, into your domain in the name of Jesus. आपके जीवन के अंदर वो आ जाए, आपके परिवार में आ जाए, आपके क्षेत्रों में प्रवेश करे। I pray as the word of God goes forth, may you see the refreshing and the power and the freedom in the name of Jesus. और जैसे परमेश्वर का वचन इस समय आपके अंदर प्रवेश करेगा, उसी प्रकार से आप आजादी को पाओ, आप चंगाई को पाओ, आप आशीषों को बहुतायता से हर प्रकार से पाओ। I declare the breakthroughs in the name of Jesus. और छुटकारा हम घोषणा करते हैं पूरी रीति से यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के लिए। I pray that you understand family and household and things that are pertaining to the church. और हम प्रार्थना करते हैं कि आत्मिक परिवार जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का परिवार है, उसकी समझ, गहरी समझ आपको आ जाए परमेश्वर के द्वारा। May the blessings of God be upon you. और परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर आ जाए इस समय। May His light always shine before you. और परमेश्वर का प्रकाश हमेशा आपके सामने चमकते हुए रहे। May you continue to hear the voice of God. और आप परमेश्वर की आवाज निरंतर सुन पाओ। May the Spirit of God continue to lead you. और परमेश्वर की आत्मा आपका निर्देशन करे। Father, this day touch your people. पिता इस समय आपके लोगों को स्पर्श करो पिता। We thank you, Lord, that you have blessed the church with the manifold wisdom, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपने कलीसिया को आपकी बुद्धि से आशीषित किया है। That the principalities and the powers will know that we have rulership. और सारा आत्मिक क्षेत्र ये जान ले कि शासन करने का अधिकार हम सबको दिया गया है। Father, I pray in the name of Jesus और पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं that churches would reopen कि कलीसियाएं फिर से खुल जाए प्रभु, and we would assemble back together and worship you and praise you, Lord. ताकि फिर से हम सब शारीरिक रीति से भी इकट्ठा होकर आपको स्तुति दे पाए, आपकी आराधना कर पाए प्रभु। Father, that we may honor you and glorify your name. प्रभु ताकि हम आपका आदर कर सके और आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु। I pray that no sicknesses would come near your tent. हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि आपके तंबू के आसपास भी कोई भी बीमारी नहीं भटके। I pray for every spiritual blessings upon you and every need of yours be met in the name of Jesus. हर आत्मिक आशीष आपके ऊपर आए और आपकी जो भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरा करे। May God always comfort you.
परमेश्वर आपको सांत्वना दे May His hand always surround you. और प्रभु का हाथ हमेशा तुम्हें ढाके हुए रहे। Father, thank you once again. पिता धन्यवाद सारी चीजों के लिए। We give you glory. आपको सारी महिमा देते We हैं, give you honor. सारा आदर हम आपको देते हैं And we give you the praise. और सारी स्तुति हम आपको देते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे, Be fruitful. फलदायी बनो, Multiply. बहुगुना हो जाओ, Increase. आपकी बढ़ोतरी हो Be good in cultivation. और काम करने में अव्वल हो And have dominion over the area God has given you. और जो क्षेत्र प्रभु ने आपको दिया है उसके ऊपर आप शासन करो। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे Until we meet again next time. जब तक हम फिर से मिले। Shalom. शालोम।